السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ حلالہ کیا ہے اور اسلام میں مختلف فقہ میں اتنا تضاد کیوں ہے اس کے بارے میں؟ اچھا، حلالہ بیسکلی اسلام میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹروورشل پریکٹس ہے جو مختلف فقہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کو لیے اس کی انٹرپریٹیشن کے ریگارڈ میں اجتہادی کیفیات میں اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ حلالہ بیسکلی طلاق کے بعد دوبارہ سے ری میرج کی اس جوڑے کی ری میرج کی وہ طریقہ کار ہے جس کو فقہوں میں اپنے اجتہادی بنیاد پر آیتوں کے سانچے میں اپنے طریقہ کار اپنے فالوورز کے پریچ کو سامنے رکھتے ہوئے انٹرپریٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیفائن کیا ہے، جو فقہ حنفی میں الگ اور فقہ جعفریہ میں الگ، اسی طرح مالکی، شافعی، حنبلی، سلفی، یہ سب مختلف اس میں اونچ نیچ کے ساتھ اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے آیت کے سانچے میں۔ اچھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے جس میں قرآن فرماتا ہے کہ پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کرے کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسری کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے وعدے کر رہا ہے جو اس کے حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اچھا، حلالہ بیسکلی عربک ٹرم ہے اور اس وقت دنیا میں ایک کنٹروورشل اسلامک پریکٹس کے طور پر ڈیبیٹیبل ہے، جس میں بیسکلی اجتہادی ایلیمنٹ علماء اکرام کا زیادہ ہے، جو قرآن کی آیت 230 سورہ بقرہ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں مختلف فقہ میں مختلف انداز میں، اور اس کے تحت یہ پریکٹس کیا جاتا ہے۔ یہ 3 طلاقوں کے بعد اگر شوہر اور عورت دوبارہ شادی کرنا چاہے یا دوبارہ ملنا چاہے تو ان کے لیے ضروری حد تعین کرتی ہے کہ وہ پہلے عورت ایک شادی کرے گی اور وہ پھر شادی کنزیومیٹ ہوگی اور اس کے بعد پھر ڈائیورس ہوگی اس کی پراپر، اور پھر وہ دوبارہ اپنے شوہر سے پریویس شوہر سے دوبارہ شادی کر سکتے، نکاح کے بندھن میں بن سکتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ طریقہ کار حنفی اسکول جو ہے وہ حلالہ کو پرمٹ کرتا ہے، اور دوسری میرج میں وہ کنزیومیٹ کروانے کا حکم دیتا ہے کہ پہلے عورت دوسرے شخص سے شادی کرے گی اور پھر وہ کنزیومیٹ ہوگی۔ کنزیومیٹ مینس فزیکل انٹیمیسی میں جائے گی، وہ باقاعدہ اس کا سیکشول انٹرکورس ہوگا، اس کے بعد پھر وہ طلاق اس کو دی جائے گی اور وہ پھر اپنے پریویس شوہر پہلے کے پاس جائے گی۔ تو فقہ حنفی میں اس کو پرمٹ کرتے ہیں، شافعی میں وہ پرمٹ کرتے ہیں لیکن اسپیشل سرکمسٹانسز، اسپیشل کنڈیشنز کے اوپر کنسیڈر کرتے ہیں اس کو، لیکن شافعی میں کنزیومیشن جو ہے شرط نہیں ہے، یعنی فزیکل انٹیمیسی شرط نہیں ہے۔ مالکی میں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں حلالہ کو، اور ان کے نزدیک یہ قرآنک پرنسپل کے اگینسٹ ہے، اور وہ
रिकन्सिलिएशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम्बली में वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ हलाला को परमिट करते हैं, लेकिन सेकंड मैरिज में वो कहते हैं कि ये जेन्युइन मैरिज हो और वो कंज्यूमेट हो अल्टीमेटली, और उसके बाद जो है फिर कंज्यूमेट होने के बाद फिजिकल इंटीमेसी के बाद ही वो प्रीवियस शौहर से दोबारा निकाह के बंधन में बन सकती है। जबकि शिया इस्लाम में शिया स्कॉलर्स जो हैं वो आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं इस हलाला को, कंसिडरिंग इट एन अन इस्लामिक एंड अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ कुरान। कहते हैं कि ये अन इस्लामिक है और कुरान की टीचिंग के अगेंस्ट है, और वो इस सिलसिले के अंदर इस पूरे सिनेरियो में मुख्तलिफ फिक की मुख्तलिफ राय है जो कुरान की आयत से इंटरप्रेट और इंटीग्रेट करके मुख्तलिफ आयतों को के सांचों में वो इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें बावजूद इसके कि डिस्प्यूटेड इस्लामिक प्रैक्टिस है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि उसमें औरत जो है 3 तलाकें उसको हो गई होंगी, और वो दूसरे मर्द से फिर मैरिज करेगी और कंज्यूमेट होगी मैरिज, और उसके बाद जो है वो दोबारा डाइवोर्स लेगी, और उस प्रोसेस के बाद फिर वो अपने फॉर्मर हस्बैंड के पास जा सकती है। तो ये इसकी एक बेसिक थीम और थियोलॉजी है। अच्छा, कंज्यूमेशन जो है इस्लामिक मेथोडोलॉजी के अंदर उसको कहते ये हैं कि इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी बिटवीन ए हस्बैंड एंड वाइफ मेकिंग द मैरिज वैलिड एंड कंप्लीट। कंज्यूमेशन के अंदर इट इज एज सेम एज ए नॉर्मल मैरिज, जिसके अंदर फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल इंटरेक्शन, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट टू डाइवोर्स, एंड देन उसके बाद जो है दोबारा उसका निकाह दोबारा होगा और वो अपने प्रीवियस हस्बैंड के पास जाने की उसको इजाज़त होगी। इसको कंज्यूमेशन कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो स्कॉलरिस्टिक व्यूज़ हैं उसमें इमाम इब्ने तैमिया जो अहले सुन्नत के स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि कंज्यूमेशन इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड मैरिज, क्योंकि कंज्यूमेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादी कह रहे हैं कि शादी वो करेगी तो उसमें कंज्यूमेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है। इमाम तबरी जो हैं वो कह रहे हैं कि कंज्यूमेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए वैलिड एंड इनवैलिड मैरिज, एक दोनों का। जबकि आयतुल्लाह खुमैनी के नज़दीक कंज्यूमेशन एस्टैब्लिश द हस्बैंड रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स हिज वाइफ, कि कंज्यूमेशन के बाद जब आप किसी औरत को बरत लेते हैं तो उसके बाद जो है वो एक बाकायदा प्रोसेस शुरू होता है जो कुरान ने उसको डिफाइन किया है, महर से लेके सारा। इस सिलसिले में थोड़ी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमें तलाक के हवाले से समझना होगी बिफोर वी गो इनटू कि हलाला क्या चीज़ है। तो उसके अंदर ये जैसे महर है, इद्दत है, महर को डाउरी कहते हैं और इद्दत को वेटिंग पीरियड कहते हैं, तलाक डाइवोर्स की सूरत और निकाह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के उसमें आ जाता है। तो ये इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम तलाक इस्लामी माशरे के अंदर शादी और तलाक का जो हुसूल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सुन्नी स्कॉलर्स बेशतर इसको हलाला को वैलिड जानते हैं, जबकि शिया इस्लाम में आउटराइट रिजेक्ट किया जाता है हलाला। जबकि बहुत से प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स जो हैं हलाला को आउटडेटेड और अनजस्ट समझते हैं। उनका कहना ये है कि औरत के साथ ज्यादती है कि आप ज़बरदस्ती उसको एक थ्रेटफुल इंगेजमेंट में लेके और उसको एक गैर ज़रूरी अमल से गुजारते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इनको बैन किया हुआ है, और ये बैन हुई थी इंडिया में 2019 में, रिस्ट्रिक्टेड है। पाकिस्तान के अंदर फिलवक्त 2019 के अंदर ही ये भी उसको किया है, और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ये अंडर रिव्यू है कि इसको राइज किया जाए या नहीं राइज किया जाए। शिया स्कूल के अंदर आयतुल्लाह सिस्तानी इसको हलाला को आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, और आयतुल्लाह खुमैनी भी इसको इनवैलिड जानते हैं और अगेंस्ट द कुरान एंड अगेंस्ट द इस्लामिक टीचिंग कहते हैं उसको। और वो उनके नज़दीक ह्यूमिलेटिंग एंड अनजस्ट है वो वेमेन के साथ के उसको हलाला के लिए पुटअप किया जाए।
अच्छा, इसी तरह आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामिनाए भी और आयतुल्लाह मकारम शिराजी भी इसको जो है इसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं हलाला को। तो गोया शिया इस्लाम के अंदर हलाला की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, तलाक के हवाले से हम थोड़ी सी ये चीज़ें जान लें कि शिया इस्लाम में और सुन्नी इस्लाम में तलाक के हवाले से जो डिफरेंस है, जो मेन वाज़ेह डिफरेंस है उसमें ये है कि शिया इस्लाम में तलाक मस्ट बी प्रोनाउंस 3 टाइम्स विद इंटरवल्स, कि वो 3 टाइम्स जो तलाक का एलिमेंट है वो 3 मरतबा 3 वक्तों के अंदर दिया जाएगा, एक वक्त के अंदर वो काबिल कबूल नहीं होगी। और सुन्नी जहाँ तक उनकी इस्लामिक पर्सपेक्टिव का ताल्लुक है, उसके अंदर तलाक कैन बी प्रोनाउंस 3 टाइम्स एट वंस, वो ट्रिपल तलाक को एक टाइम पे कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कि शिया इंटरप्रिटेशन के अंदर आप 3 टाइम पे मुख्तलिफ औकात के अंदर जो है बीच में गैप दे के करते हैं, और सुन्नी इस्लाम के अंदर जो है या सुन्नी इंटरप्रिटेशंस के अंदर जो है तलाक जो है वो आप तीनों तलाकें एक वक्त में दी जा सकती है। इसी तरीके से जहाँ तक अहले तशय्युअ का ताल्लुक है, उसमें जो कंडीशन ऑफ डाइवोर्स है उसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ जो होती हैं उनको सेन हालत में होना चाहिए। ये ना हो कि एक जो है इनसेन है और दूसरा सेन है, तो उनको सेन हालत में होना चाहिए। वाइफ जो है मेंस्ट्रुएटिंग ना हो, उस वक्त मेंस्ट्रुएशंस ना चल रही हो, उसके स्टेट ऑफ प्योरिटी के अंदर हो, कोई कंपल्शन या कोई थ्रेट उसके ऊपर ना हो, ज़बरदस्ती आप तलाक मांग रहे हो उससे, और या ज़बरदस्ती आप उसको तलाक दे रहे हो, कंपल्शन में वो कर रही हो, तो ये उसके अंदर बाकायदा शर्तों की सूरत मौजूद है शिया इंटरप्रिटेशंस के अंदर। इसके अलावा जो डाइवोर्स प्रोसीजर हैं उसमें सबसे पहले जो वक्फा है वो काउंसलिंग प्रोसीजर्स के अंदर आता है, मीडिएशंस के अंदर आता है कि बीच में आप आर्बिट्रेशन कर लें, उनको समझाएं, काउंसलिंग करें। और अगर कोई चीज़ नहीं बनती है तो बाकायदा तलाक सिर्फ ज़बानी ही नहीं है, उसके साथ तलाकनामा एक डाइवोर्स डॉक्यूमेंट की सूरत मौजूद होता है। दूसरा, उसमें पीरियड जो इद्दत का है वो एक कंपलसरी एलिमेंट है, पीरियड ऑफ जो इद्दत का है उसमें 3 मंथ जो है लाजमी अमल है कि उसको 3 से 4 माहवारी जो है वो गुजारनी पड़ती है। और उसके बाद इसलिए कि आफ्टर ऑल बाद दफ़ा जो है औरत ऐसे केसेस के अंदर प्रेग्नेंट हो सकती है, और उसमें फिर पैटर्निटी का बहुत बड़ा इशू होता है कि आने वाली नस्ल जो है फिर किस उसमें जाएगी। इसलिए इद्दत का काटना और इस बात का ज़रूरी होना कि वो 3 से 4 माहवारियाँ गुजार दे उस ख़ानदान के अंदर या उस इद्दत के दौरान। अच्छा, अब इद्दत के दौरान में ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर औरत जो है वो उसी के घर में रहेगी, और अगर उसका बच्चा होता है, अगर उसमें प्रेग्नेंट पाई जाती है, तो उस वक्त तक नान नुफ्ता उसका आदमी पर पाबंद है जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए। और उसके बाद कुरान ने और हदीस ने जो हुक्म दिया है वो ये कि अगर पैदाइश के बाद अगर दूध पिलाने पे एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट हो जाए तो औरत उसको उस वक्त तक दूध पिलाएगी, और जब तक वो दूध पिलाएगी और नान नुफ्ता और वो जो भी एग्रीड टर्म्स होगी उसके ऊपर वो पाबंद होगा मर्द जो उसको अदा करे। अच्छा, ये अर्ली इस्लामिक जूरिस्ट के अंदर जो है उसमें इमाम अबू हनीफा के मुताबिक वो इसको परमिट करते हैं हलाला को, और जबकि इमाम शाफई जो हैं वो भी उसको एक्सेप्ट करते हैं इसको विद कंडीशंस, और इमाम मालिक जो है वो उसको रिजेक्ट करते हैं हलाला को। मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स को अगर हम देखते हैं तो हनफी स्कूल परमिट करता है, शाफई स्कूल इसको एक्सेप्ट करता है, मालिकी स्कूल इसको रिजेक्ट करता है, और हम्बली स्कूल इसको अगेन परमिट करता है। जबकि शिया स्कूल ऑफ थॉट इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जो रिलेटेड है, हम उसको हलाला को जो है रिजेक्ट करते हैं। लेजिस्लेशन वाइज जो इसको कोडिफाई किया गया था 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, शरीयत लॉ जो एप्लीकेशन एक्ट थी वो 1937 में पाकिस्तान में भी और 1937 में इंडिया में भी, और 1929 में इजिप्ट ने इसको अमेंड किया है, इजिप्ट में भी इसको और अभी भी ये बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इसके रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और इसको देखा जा रहा है कि किस नज़रिए के तहत इसको इंटरप्रेट किया जाए। अच्छा, अब हनफी स्कूल को एक बार हम फिर लें तो उसमें वो परमिट करती है और कंडीशनल परमिट करती है, जिसमें सेकंड मैरिज मस्ट बी कंज्यूमेटेड।
हनफी स्कूल के मुताबिक सेकंड मैरिज जो होगी वो फुल फ्लैश कंज्यूम होगी और उसके बाद फिर तलाक होगी और वो फिर दोबारा अगले से शादी करेगी। शाफई स्कूल में भी वो हलाला को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो भी शाफई भी कंज्यूमेशन को नेसेसरी नहीं जानते वो, और लेकिन वो जेन्युइनली सेकंड मैरिज को कंसिडर करते हैं कि सेकंड मैरिज कंसिडर होगी और चाहे उसमें कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो या ना हो। जबकि मालिकी स्कूल के अंदर वो रिजेक्ट करते हैं और इनवैलिड कहते हैं उसको कि कुरानिक प्रिंसिपल के खिलाफ है ये। जबकि हम्बली स्कूल फिर इसके अंदर जो है स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ इसको परमिट करते हैं और सेकंड मैरिज को जेन्युइन जानते हैं और कंज्यूमेशन को भी वो जेन्युइन जानते हैं। जबकि शिया इस्लाम के अंदर जैसे कहा कि उसमें अन इस्लामिक और कुरानिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ समझा जाता है और वो दूसरे रिकन्सिलेशन के जो तरीक़ेकार हैं उसके ऊपर स्टेप देता है। इस कुरान ने मल्टीपल आयत इस सिलसिले के अंदर जो जहाँ जहाँ चैप्टर्स हैं उसमें सूरह निसा आयत नंबर 22, 23, 24, सूरह निसा की आयत नंबर 35, सूरह तलाक की आयत नंबर 1 से 7, सूरह मुमतहिना की आयत 10, 11, 12 और सूरह अहज़ाब की 33, 49 आयतें हैं जो इस सिलसिले में एक वाज़े तस्वीर कशी करती हैं, जिसके तहत जो है, और जैसे हमने बताया कि सूरह बकरा की आयत नंबर 230, तो ये वाज़े तशरीह करती हैं जिसके तहत एक पेन पिक्चर मिल सकती है इंटीग्रेशन करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए, ताकि एक फ़क़ी के तज्ज़िये के मुताबिक एक आम आदमी भी उस तज्ज़िया कर सके उसका कि जो मुख्तलिफ फ़िक़्ह के अंदर इस असलूब पर इंटरप्रिटेशंस हुई हैं वो उन असलूब पर क्यों कर डिबेट की सूरत ये हुक्मनामा जो है सामने आ गया है, रैशनली भी और एथिकली भी। अच्छा, जिस तरीके से हमने पहले डिफाइन किया था कि सूरह बकरा की आयत नंबर 230, फिर अगर दोबारा तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत फिर इसके लिए हलाल ना होगी, इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो इसे तलाक दे दे। तब अगर पहला शौहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हुदूद इलाही में कायम रहेंगे तो इनके लिए एक दूसरे की तरफ रजू कर लेने में कोई मुज़ायका नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो इन लोगों की हिदायत के लिए वादे कर रहा है जो इसके हुदूद को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। तो ये कुरान ने मुख्तलिफ सूरतों के अंदर इसको बाकायदा वाज़े बयान किया है और इस रिलेशन को बाकायदा ऑर्डर की सूरत इसको इम्प्लीमेंट भी कराया है, जिसके अंदर कुरान ने तलाक से लेके और तलाक के मराइल से लेके जो रिकन्सिलिएशंस हैं, जहाँ जहाँ जो तरीक़ेकार हो सकता है वो सारे डिफ़ाइन किए हैं। और यही वजह है कि कुरान की ये खूबसूरती है कि उसमें हर आलिम, हर इज्तिहाद करने वाला, हर फ़क़ी अपने अंदाज से उसको इज्तिहादी तौर पर कुरान को बाकायदा उसके असलूब के साथ वज़न करके जहद करता है, कोई कोशिश करता है और वो फिर फ़िक़्ह की सूरत उसको नाफिज कराता है। तो मुख्तलिफ फ़िक़्ह के अंदर ये चीज़ें फ़िक़ही तौर पे इख्तिलाफ़ रखती हैं, इज्तिमाई तौर पे इख्तिलाफ़ नहीं होता। और उसके अंदर जो शराइत रखी गई हैं उनमें शराइत को हर फ़िक़्ह अपने फॉलोअर्स, जैसे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का है, हनफी और इसी तरह शाफ़ई, इसी तरह मालिकी, वो सब अपने अपने जो मेन जिनको ये फॉलो करते हैं उनके इज्तिहाद के हिसाब से उसको तरवीज और तदरीस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।